الضاد فخري أنني للضاد حقا أنتمي، وبه ابتدأت قصيدتي وبه ختام بياني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی آج ہم نے مرکب شروع کرنا ہے. مرکب اس وجہ سے ہم پڑھ پا رہے ہیں. مرکب معنی ایک سے زیادہ ورڈز کو جب آپ ایک ساتھ رکھتے ہیں تاکہ کوئی سینس بنے، چاہے وہ سینس یا جس کو آپ ان شارٹ بولتے ہیں سینٹینس، چاہے وہ سینٹینس کمپلیٹ ہو یا انکمپلیٹ. تو اس پر ہم کیوں آ رہے ہیں ابھی؟ کیونکہ ہم اسم بیسک اس کا پڑھ چکے ہیں. تو کیونکہ اسم ہی اگر ہمارے پاس ہو، یعنی صرف ہم نے اسم ہی پڑھا ہو، تو اس میں سے بھی ہم بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں. اور اگر ہم نے صرف فعل سے سٹارٹ کیا ہوتا تو فعل کی بنا پر صرف فعل پڑھ کر کوئی ہم جملہ نہیں بنا سکتے، لیکن اسم سے ایسا پاسبل ہے. اس لیے ہم آتے ہیں مرکب کی طرف، جس کا دوسرا نام آپ دیتے ہیں جملہ. تو جملہ ہمارے پاس دو ٹائپس کا ہوتا ہے، مفیدہ اور غیر مفیدہ، جن کا ترجمہ آپ کرتے ہیں کمپلیٹ اور انکمپلیٹ سینٹینس. کمپلیٹ سینٹینس کیا ہے؟ عربی گرامر کے اعتبار سے اس کی بیسکس آپ سمجھ لیں کہ کمپلیٹ سینٹینس وہ سینٹینس ہے کہ جو ہم کو مکمل فائدہ دے، اور سننے والا جو اس کلام کو سن رہا ہے وہ اور کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہا ہے. ٹھیک؟ مثال کے طور پر میرا کہنا حامد گھر میں ہے. جب میں نے کہا حامد گھر میں ہے تو سننے والا اور کوئی چیز نہیں پوچھے گا، یا ابھی وہ کسی ورڈ کے انتظار میں نہیں ہے کہ کچھ اور بھی کہنا پینڈنگ ہے. تو یہ تو ایک چیز ہوگی. دوسرا، اگر یہ کہا جائے حامد کا گھر، اب سننے والا جو ہے ابھی بھی انتظار کر رہا ہے، کیا بولا جائے گا؟ حامد کا گھر بڑا ہے، حامد کا گھر خوبصورت ہے، حامد کا گھر کچھ بھی اس کے بارے میں جو بھی بات ہو سکتی ہے وہ ورڈ اگر ہم نہیں کہے تو یہ سننے والا ابھی بھی منتظر رہے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو فرق ہے اس کو یاد رکھنا ہے، مفیدہ اور غیر مفیدہ. جو ہمارے پاس کمپلیٹ سینٹینسز ہوتے ہیں ان کو آپ عربی میں اب ان شارٹ مفیدہ ہی کہیں گے. اچھا، غیر مفیدہ انکمپلیٹ سینٹینسز، باتیں ہوں گی لیکن باتیں ہوں گی آدھی ہی. ٹھیک ہے؟ جیسے حامد کا گھر، ٹھیک، لمبا لڑکا، نئی کتاب. ٹھیک؟ تو یہ ساری جو ہے باتیں ہے، سینٹینسز ہے، انکمپلیٹ ہے. لیکن اچھا، ابھی اگر ہم بات کریں کمپلیٹ سینٹینس کی، وہاں پر آتے ہیں کمپلیٹ سینٹینس میں. تو اس میں پہلا آتا ہے ہمارا جملہ، اس کو آپ جملہ ہی کہیں گے، جملہ اسمیہ. اور یہاں سے آتا ہے پھر اسی کے انڈر جملہ فعلیہ. ان دو کو پہلے اچھے سے ہم سمجھتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کس کو ہم کہتے ہیں؟ یہ وہ جملہ ہے جس میں ہم کوئی بات پیش کرتے ہیں، کوئی کام نہیں ہو. مثال کے طور پر آپ کا کہنا حامد اسٹوڈنٹ ہے، حامد طالب علم ہے. اس میں آپ کوئی خبر دے رہے ہیں، انفارمیشن پاس کر رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہے اس میں. جملہ فعلیہ میں کوئی کام ہوتا ہے. ٹھیک؟ حامد چل رہا ہے، حامد لکھ رہا ہے وغیرہ. لیکن یہ جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن بولی، یہ بیسک لیول کی ڈیفینیشن ہے. اس کا گرامر میں زیادہ اعتبار نہیں ہے، اگرچہ ہم سمجھا ایسے سکتے ہیں.
इसके बाद फर्दर आप ऊपर जाएंगे, ग्रामेटिशियंस कैसे समझाते हैं जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया को। वो कहते हैं जो भी जुमला इसम से शुरू हो या ऐसा हो पहले कि वो हो मुफीद, यानी कंप्लीट बात हो, सुनने वाला और किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहा हो, लेकिन होता भी स्टार्ट किससे हो, इसम से, फिर आगे उसके क्या भी आए वो मसला नहीं है, उसमें फिर अगर काम भी हो तो मसला नहीं है, ठीक है। और जुमला फेलिया वो तो है ही जिस जो किससे शुरू हो, फेल से, उसके अंदर फिर जो भी फर्दर आए, ठीक है। ये प्रॉपर डेफिनेशन है और इसको जब आप अप्लाई करते हैं तो हर किसी जगह ये अप्लाई हो जाता है। जुमला इस्मिया की तारीफ, वो जुमला, पहले जुमला हम कह रहे हैं यानी मुफीद, जो इसम से शुरू होता हो, और फ़ेलिया जो फ़ेल से शुरू होता हो। अब अगर हम बात करें जुमला इस्मिया की, उसको हम पढ़ पाएंगे अभी के लिए, क्यों? क्योंकि हमने इसम पढ़ा है, ये तो पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि हमने अभी फ़ेल को टच नहीं किया है तो इसलिए हम फ़ेल या जुमला फ़ेलिया नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक। अच्छा, अब अगर हमने जुमला इस्मिया को पढ़ना है, अब हम इसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे, और इसमें जो अज्जाउल जुमला होते हैं या अज्जाउ जुमला इस्मिया जो भी होंगे, यानी पार्ट्स, बना किसका होगा, इसमें क्या क्या होगी वगैरह, वो सारी चीजें अभी के लिए हम देखते हैं इंशाल्लाह। देखिए आपके सामने ये जो टॉपिक है जुमला इस्मिया, डेफिनेशन तो हमने अभी कही। इस डेफिनेशन को आप ब्रेक कर सकते हैं ऐसे कि जिस इसम का अभी हमने कहा, यानी स्टार्ट हो गए इसम से, ठीक, फिर उस इसम के बारे में जो भी बात आप करेंगे, ठीक, वो उसके बारे की खबर होगी। मिसाल के तौर पर आपका कहना अल कलमु जदीदुन, कलम नया है, कलम नया है, तो कलम, जैसे कि अभी हमने कहा था मुकम्मल बात, कलम वो इसम है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। क्या बात आपने की कि वो नया है, ठीक, तो आपने उसके बारे में खबर दी। या इसको हम दूसरे अंदाज से ऐसे समझ सकते हैं, जुमला इस्मिया बनता है एटलीस्ट दो वर्ड से, जिसमें से हम एक को मुब्तदा कहते हैं और दूसरे को खबर, जिसमें से एक को हम मुब्तदा और दूसरे को खबर। अब सवाल ये है कि मुब्तदा वर्ड कौन सा है और खबर कौन सा वर्ड है, किसको आप मुब्तदा कह सकते हैं और किसको खबर। ठीक है, हमको ये तो समझ आया कि जुमला इसमिया होता है जिसमें मुब्तदा और खबर हो, लेकिन टॉपिक ये है कि मुब्तदा आप किसको कहेंगे और खबर किसको। तो बिना किसी बिना किसी आप जो रूल्स आप मतलब ना सोच सकते हैं, चल कलम नया है, आप इसके लिए अल कलम कहते हैं, फिर कहते हैं नया, उन चीजों को यानी तफहीम के बाब से छोड़ करके रूल्स पर अगर हम आ जाए तो उसकी उलमा ने कंडीशंस बयान की है। पहली कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन मुब्तदा के लिए कि वो इसम हो, ठीक, और खबर ये भी एक इसम होता है। फिर इसी तरह जो मुब्तदा है वो हालत रफा में होता है और खबर ये भी हालत रफा में होता है। अब यहाँ मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है हालत रफा क्या होती है और उसकी अनवा और अकसाम क्या क्या है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है गुज़िश्ता जो असबाक हमने पढ़े थे उसमें। हालत रफा दोनों मरफू होते हैं या दोनों हालत रफा में होते हैं। अब एक डिफरेंस यहाँ पर मेन है, वो है मुब्तदा होता है मारिफा और खबर ये एक नकिरा वर्ड होता है। मुब्तदा मारिफा है और खबर नकिरा। क्या माना, आप कोई भी दो वर्ड्स सिंपलेस्ट ले, मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे सामने वर्ड्स लिखे हैं, अभी हम ऐसे लिखते हैं, हमारे पास है अल बैतु जदीदुन, ठीक। आप क्यों कह पा रहे हैं घर नया है,
कंप्लीट तर्जुमा आप इसका उर्दू में क्यों कर रहे हैं? रीजन ये है कि इसमें पहला वर्ड इसम है, ये भी इसम है। अच्छा, अल बैत हालत रफा में है, जदीद भी हालत रफा में है। अल बैत जो है ये मारिफा है, मेन सबसे बड़ा जो मसाला है, और जदीदुन ये यहाँ पर नकिरा है। मारिफा और नकिरा, ये जब आपके पास कॉम्बिनेशन आ गया मारिफा और नकिरा का, आप कहेंगे ये दोनों मिलकर के बनाएंगे मुब्तदा और खबर, ये बन जाएगा जुमला इस्मिया। ठीक, बुनियाद क्या बनी? इस वर्ड का मुब्तदा की शुरूत पर उतरना और इस वर्ड का खबर की शुरूत पर उतरना। अभी तो यहाँ पर हमने मतलब क्लियर कट ऐसी बात की जो मतलब हम नॉर्मली जहन में ला भी सकते हैं। घर नया है। अब मैंने यहाँ पर इससे पहले एक कुछ वर्ड्स लिखे थे, अगर मुझे अब वो भी कहना हो जो यहाँ पर लिखा है, देखिए अल वलदु वलदुन, मैंने दो, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं समझाने के लिए, मैंने दो वर्ड्स लिए, कोई भी डमी वर्ड्स, वलदुन वलदुन। इसमें पहला ये जो इसम है ये भी इसम है, चलिए ठीक है, उसकी कंडीशन पर ये आ गए, दोनों दोनों इसम है। क्या दोनों हालत रफा में है? हाँ, दोनों हालत रफा में भी है। लेकिन अब फर्क कहां पर होगी? क्या पहला मारिफा है ये वर्ड? नहीं। अगर मैं इसको मारिफा बना दूं, अगर मैं इसको मारिफा बनाऊं, तो मैंने वलदुन के बदले कहा अल वलदु, फिर दूसरा वर्ड नकिरा है, हाँ वो नकिरा है वहां पर, ठीक है। जब ये नकिरा है और ये पहला वर्ड जो है मारिफा है, इसका तर्जुमा, तर्जुमे की पहले छोड़ दिए बात, पहले हम कहेंगे क्या ये मुकम्मल जुमला है अरबी में? हाँ, चाहे इसका मतलब अब सही या मकसद जो हम कहना चाहते हैं उस एतबार से उसकी बनावट या उसका जो मानी हो, मानी के एतबार से ये जो है गलत लगता है। ठीक, अगरचे फिर हम ये भी कह सकते हैं हाँ सही है वो भी। अल वलदु वलदुन, इसका तर्जुमा उर्दू में होगा लड़का लड़का है, कंप्लीट तर्जुमा। क्यों? क्योंकि आपने इसको मुब्तदा और खबर बनाया जो मिलकर के जुमला इस्मिया बना। और अभी हम पढ़ चुके हैं जुमला इस्मिया कौन सी टाइप है मुरक्कब की, वो वाली टाइप जो मुफीदा है, जो कंप्लीट हमको बात समझाती और सिखलाती है। ठीक है। अच्छा, यहीं पर हमारा एक और जो है इश्काल वो भी जाहिर हो सकता है, जो अभी हमने कहा था कि अभी हमने पढ़ा, अगर हम यहाँ पर अल वलदु, कोई और वर्ड लेता हूं मैं कहूंगा अल वलदु जालिसुन। अच्छा, इसका जब हम उर्दू तर्जुमा करते हैं, उर्दू तर्जुमा इसका करेंगे, क्या होगा? लड़का चलिए ऐसे ही कहते हैं, लड़का बैठा, ये तो है लड़का, ये है बैठा। फिर लास्ट में आप उर्दू में इस है के लिए कहते हैं, या इस कंप्लीट इस जुमले को करने के लिए इस्तेमाल करेंगे लास्ट में है। लड़के के लिए अलवलद, बैठा के लिए जालिस, है आप उर्दू में जो ला रहे हैं उसके लिए अरबी में कौन सा वर्ड है ऊपर? तो इसका जवाब क्या है? जवाब ये है कि हमारे पास जैसे उर्दू में है या इंग्लिश में इज या वगैरह, इज आर वगैरह के वर्ड जो इस्तेमाल होते हैं एक जुमले को कंप्लीट करने के लिए, अरबी में उन वर्ड्स की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हम यहाँ पर वर्ड्स को कुछ ऐसे पैटर्न पर रखते हैं जिससे खुद ब खुद अरबी लिसनर को, सुनने वाले को ये समझ आ जाता है कि कहने वाले को और कुछ नहीं कहना है। इसकी अच्छी सी एक मिसाल, ये ना जो अरबी के दो वर्ड्स है और उर्दू में तीन, वो क्यों आए? ठीक,
यहाँ पर 3 क्यों आ रहे हैं? लड़का बैठा है और उर्दू में 2 ही है। तो उसको समझने के लिए हम, क्योंकि कश्मीरी है, तो वहां पर जब हम मुजाफ मुजाफ अलैह को इस्तेमाल करते हैं, हमारा कहना होता है, चलिए उर्दू में कहते हैं पहले, हामिद की किताब। कितने वर्ड से? 3। उर्दू में आप इसी को बोलेंगे तो 3 वर्ड है, लेकिन अगर आप इसी को कश्मीरी में बोलेंगे तो आपके पास सिर्फ 2 वर्ड आएंगे, हामिदिन किताब। अब यहाँ 2 ही वर्ड आए। कोई अगर आपको पूछे ये का या की के कहाँ चला जाता है आपके कश्मीरी में, तो हम बोलेंगे हमारे कश्मीरी में उस्लूब कुछ ऐसा है कि हम वर्ड्स को कुछ अलग, हाँ, स्ट्रक्चर दे देते हैं, जिससे हमको पता चलता है जो आपको की का के वर्ड्स मतलब देते हैं, वो हमको ये सीक्वेंस या ये पैटर्न मतलब दे देता है। हामिदिन किताब, तो हमने इसको लास्ट में कुछ किया, हामिद को हामिदिन ऐसे बोला, किताब, तो ये 2 ही वर्ड्स आ गए। सेम यहाँ पर भी अगर आपके पास मारिफा और नकिरा का कॉम्बिनेशन है तो आप बोलेंगे मुब्तदा और खबर, तो फिर वो बात आपकी कंप्लीट होगी। ठीक, ये बेसिक्स था जुमला इस्मिया के बारे में, इसको ऐसे ही समझना है। और अल वलदु जालिसुन, असल में मुब्तदा क्या है, उसकी डेफिनेशन, जिसके बारे में आप बात करें ये मुब्तदा है। अल वलद, इसके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो है खबर। लड़का बैठा है, लड़के के बारे में आपने बात की, और क्या बात की, वो उसकी खबर होगी जिसके बारे में आपने बात की, क्योंकि उसी से आपने शुरू भी किया, इसीलिए उसको कहते हैं मुब्तदा। और जो खबर आपने इस मुब्तदा के बारे में दी, यानी इंफॉर्मेशन दी, इसलिए इसको खबर ही कहते हैं। आज के लिए इंशाअल्लाह ताला बस इतना ही। बाकी अगला हमारा जो आता है, या इसको अभी हम देख लेते हैं हल्का सा। अभी के लिए हमारा हो गया जुमला इस्मिया, ठीक है। लेकिन हमने इस जुमला इस्मिया को बनाया सिंपल 2 वर्ड से। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कि 2 वर्ड से बनाया जाए। जुमले के लिए एटलीस्ट 2 वर्ड होने चाहिए, लेकिन अभी अगर आप देखोगे या समझोगे कि जब हम कहते हैं घर बड़ा है, ये तो 2 वर्ड होंगे, घर और बड़ा। कभी आप कहते हैं हामिद का घर बड़ा है, ठीक। अब किसके बारे में आपने बात की, वो 2 वर्ड्स होंगे, हामिद का घर, क्या कहा, बड़ा है। ये घर हामिद के बेटे का है। अब जो जिसके बारे में आपने बात की वो भी 2 वर्ड, ये घर, इसमें ये भी है और घर भी है। फिर हामिद का बेटा, वो भी 2 वर्ड्स है, फिर है से आप कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये जो एक सेंटेंस आप बनाते हैं, ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस से ही आप बनाते हैं। इसको हम जुमला इसमिया को आप फर्दर पढ़ेंगे कहाँ पर, जब हम ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस पढ़ेंगे। और ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस अब हम एक एक करके सीक्वेंस से पढ़ सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर ये हमारा पेंडिंग अभी के लिए रह जाएगा, इसको नहीं पढ़ पाएंगे जुमला फेलिया को। बाकी इंशाअल्लाह ताला कल से हमारा नेक्स्ट क्लास से हमारा टॉपिक रहेगा इजाफी गैर मुफीद जुमला। अच्छा, मुफीद जुमले का एक और नाम है ताम, मुरक्कब, ताम। और इसका नाकिस, ताम और नाकिस। अगर मैं कहूँ जुमला नाकिसा तो मुराद होगी गैर मुफीदा, अगर मैं कहूँ जुमला ताम तो मुराद होगी हाँ जुमला मुफीदा। इसी पर इक्तिफा करते हैं।